السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ دوستو، بہت پیارا موسم ہے، خوبصورت موسم ہے۔ میں پنکھے کے بغیر بھی بیٹھا ہوں، 30 ٹمپریچر کے قریب ہے۔ میں نے کہا پہلے آپ کو باہر کا موسم دکھاؤں اور پھر آپ سے سیاسی بات کرتے ہیں۔ تو موسم تو سر یہ دیکھیں، یہ خوبصورت درخت ہیں جو ہل جل رہے ہیں۔ یہ میرے پرندے بھی خوش ہیں، کبوتر بھی خوش ہیں۔ ان کو میں نے صبح صبح اٹھ کے جناب ان کا پانی چینج کیا ہے اور کھانا رکھا ہے۔ یہ اپنے گھونسلے میں جناب یہ طوطے جناب کوئی انڈے شنڈے دینے کے چکر میں ہیں۔ یہ دیکھ، یہ خوش ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے سر۔ یہ کتنے کبوتر ہیں، یہ جاپانی چڑیا، یہ سارے یہ میں قریب آتا ہوں تو یہ پھر بولتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ یہ بٹیرے بھی دیکھیں، یہ ہمارے بٹیرے، یہ ٹھیک ہے۔ تو موسم بہت پیارا ہے، اور موسم پیارا ہونا تو آدھی طبیعت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ رات کو بارش بھی ہوئی ہے لاہور میں، اور اب مزید ہونے والی ہے بارش۔ تو جناب علی آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ آندھی بھی ہلکی پھلکی آئی تھی رات کو، تو ہاں جی، یہ اندر جب ہم اپنے کچھار میں آ گئے ہیں کمرے میں اچھا جی، آپ کو پتہ ہے آج مدر ڈے چل رہا ہے، تو مدر ڈے کے حوالے سے کہتے ہیں ہیپی مدر ڈے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہیپی مدر ڈے تو ان کے لیے جن کی مائیں زندہ ہیں، ان کے لیے تو صحیح معنوں میں ہیپی مدر ڈے ہے نا، کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کریں، ماں کی گود میں بیٹھے گپ شپ لگائیں، ان کو پیزا کھلائیں، برگر کھلائیں، دال کھلائیں، ساگ کھلائیں، کلفی کھلائیں اپنے توفیق کے مطابق۔ تو باقی جن کی مائیں پھر فوت ہو جاتی ہیں وہ پھر تھوڑے سے سیڈ بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے اپنی ماں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ وہ بھی ایک اچھا سلسلہ ہے۔ دنیا میں آپ کو پتہ ہے رہنا تو کسی نے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جس درجے پہ ہمارے ماں باپ تھے اب ہم اس درجے پہ آ گئے ہیں، ٹھیک۔ تو وہ دونوں ماں باپ چلے گئے، ہوں اسی جان ہے، یہ تو قسمت کی بات ہے۔ اچھا جی، سیاسی باتیں میرے پاس بہت زیادہ ہیں۔ بات یہاں سے شروع کروں گا سر کہ تعریف وہ ہوتی ہے جو دشمن کرے۔ یہ سنا ہے نا آپ نے، دشمن کی تعریف وہ تعریف ہے۔ اس نے فواد چودھری نے کہا ہے کہ جناب اس وقت اگر کوئی سیاستدان سیاست میں اپنا اہم رول ادا کر سکتا ہے تو وہ ہے نواز شریف۔ یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا، آپ قانون ٹی وی کے لور نہیں کہہ رہے، شہباز مریم نہیں کہہ رہے، یہ فواد چودھری جو سب سے بڑا کرٹک اور سب سے بڑا ناقد تھا، وہ کہہ رہے کہ جی نواز شریف اس وقت اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو انہوں نے کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کل بلکہ رانا ثناءاللہ سے ایک وہ اینکر پوچھ رہی تھی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ نواز شریف صاحب اڈیالہ جیل چلے جائیں عمران خان کو ملنے کے لیے؟ یعنی عجیب سا سوال تھا نا۔ تو رانا ثناءاللہ نے آگے سے جواب دیا کہ جب 13 کے الیکشن میں جب نواز شریف صاحب کو یہ گالیاں دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا نواز شریف میں تیرے گریباں سے پکڑ کے تجھے گھسیٹوں گا اور یہ ہے اور وہ ہے، اور اسی دوران اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے سیڑھی سے گر کے، تو نواز شریف صاحب ساری کمپین بند کر کے اس کو پوچھنے چلے جاتے ہیں۔ بندے بندے کا ہے نا، انہوں نے کہا جی بندے بندے پہ ہے، اس لیے اس کو خارج از امکان نہیں کہہ سکتے کہ نواز شریف جا کے اس کو اڈیالہ جیل میں مل سکتا ہے۔ پہلے بھی نواز شریف صاحب جب دوسرا واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ جب آرمی پبلک سکول کے اوپر حملہ ہوا دہشت گردوں کا، تو نواز شریف نے اس وقت بھی نواز شریف کو عمران خان گالیاں دے رہا تھا، 126 دن کا دھرنا یاد ہے نا آپ کو۔ تو نواز شریف نے فون کیا کہ آؤ عمران مل کے دہشت گردی کا خاتمہ کریں۔ تو نواز شریف سے پازیٹیو سیاست آپ کبھی بھی ہو سکتی ہے،
कभी भी हो सकती है। आप देख लें उसने कभी किसी का नाम लिया हो तो। ये ग्रेट आदमी है सर, ग्रेट आदमी है। आप यकीन करें, मैं ना अगर यानी कि मैं नून लीग का नाम भी हूं ना, तो आप ज़रा साइड पे एक चीज़ के रख के देखें कि क्या ये बातें हुई हैं कि नहीं। इमरान खान एक इंतकामी जहन रखने वाला बंदा है और नवाज शरीफ साहब एक ठंडे दिलो दिमाग रखने वाले मेड इन पाकिस्तान सियासतदान, इसलिए हम उनको पसंद करते हैं। हमने कोई नवाज शरीफ साहब से कोई रायवंड में से कोई जायदाद में हिस्सा नहीं लेना ना उनको हमने अपनी जायदाद का हिस्सा देना है, लेकिन जो सच बात है वो करनी है। वो मेड इन पाकिस्तान है, ये आपको मानना पड़ेगा। उसने गालम गलोच की सियासत को ख़त्म करने की कोशिश की है और इमरान खान ने हवा देने की कोशिश की। अभी आप देख लें, अमीन गंडापुरी ने जो गालम गलोच का तरीका अपनाया है, एक वजीर आला है ना इनके पास इस वक्त, वो क्या कर रहे हैं। तो कश्मीर के हालात भी दोस्तों थोड़े से ख़राब हैं। तो कश्मीर में हमें बड़ा, हमारा सेंसिटिव इलाका है, हमें वहाँ बड़े मोहतात तरीके से करना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब को फौरी एक्शन लेके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर से मिलना चाहिए और उनको पूछे कि क्या मसला है। वो कहते हैं कि हमारे बिजली के जो रेट हैं वो कम करें। बिल्कुल करें। बिजली का तो सर जी मैं आपको पूरा सर्वे कर चुका हूँ। 50% बिजली सोलर एनर्जी से पैदा हो रही है। तो जब 50% पैदा कर रहे हैं हम, तो बाकी सस्ती नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट की बिजली। लेकिन इन्होंने ठेके गलत दिए हुए हैं सर। इन्होंने ये अपनी गलती नहीं बताते आवाम को, इन्होंने ठेका दिए हुए IPPs जो कंपनियां बताते हैं, इन्होंने कहा जी हम आपको महीने का 1 अरब रुपया देंगे, चाहे बिजली ना इस्तेमाल करें ना, एक बल्ब भी ना जलाएं, इन्होंने 1 अरब रुपया देना है। ये कैसे सस्ती करेंगे, ये कैसे सस्ती करेंगे? ये नहीं सस्ती करेंगे। लिहाजा कश्मीर के मसले के ऊपर इनको फौरी तौर पे शहबाज शरीफ साहब को उधर जाना चाहिए और वो करना चाहिए। एक बात मैं समझता हूँ कि हमें ज़्यादा किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब का एक बयान है जो मुझे अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में तरक्की का सफ़र करेगा। गलत यार, क्यों? पाकिस्तान फिर दे दे, सऊदी अरब को दे दे। पाकिस्तान सऊदी अरब की क़यादत में कैसे तरक्की करेगा? वो उनके साथ आप ताउन करें, उसी तरह का ताउन आप चीन से कर रहे हैं, उसी तरह का ताउन आप रूस से कर रहे हैं, उसी तरह का ताउन आप तुर्किया से कर रहे हैं। तो ये नहीं कहना चाहिए कि मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की करेगा। क़यादत इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास, उनका ताउन हमारे साथ है। और वो भी सुनने में आया कि उनका दौरा भी कैंसिल हो गया। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी बता रहा हूँ, उनका दौरा भी हो गया है। तो अल्फाज का चुनाव ज़रा बेहतर होना चाहिए, अल्फाज का चुनाव। ठीक है जी। हाँ, मरियम नवाज ने बड़े खूबसूरत अल्फाज थे माँ के दर्जे के हवाले से। उन्होंने कहा जी मैं ये माँ का जो दिन है ना, ये सारा गज़ा की माँओं के नाम करती हूँ, फ़लस्तीन की माँओं के नाम करती हूँ। देखें, ये विजन होता है, विजन, कि आपने बात को कैसे करना है कि जिसका असर हो उसका। तो उन्होंने मोहम्मद बिन ये माँ का दर्जा जो है ना उसको दे दिया है। ठीक है, तो ये सूरत हाल है। और आज छुट्टी है तो मैंने कहा जी आज मैंने कोई काम नहीं करना, मैंने आज आराम करना है। लेकिन सर आप 1-2 घंटे आराम करके ना फिर आपका दिल करता है काम। अब मेरा काम पता है क्या सबसे प्यारा होता है? ये आपसे बातें करना, ये जो मैं कर रहा हूँ। और मुझे आप कितने मशवरे देते हैं। अभी मैंने कल बताया कि इंशाल्लाह इस दफ़ा जो गर्मी की छुट्टियाँ होंगी तो मैंने लंदन का सफ़र करना है, UK का सफ़र करना है। तो आप दोस्तों के बयानात भी आ रहे हैं, दावतें भी आ रही हैं, मुलाकातों के भी दिन आ रहे हैं। और जो मुलाकात दोस्त करना चाहते हैं वो बेशक मेरे साथ फ़ोन पे रब्ता कायम करें। तो मैंने ये गर्मियों की छुट्टियाँ जब हमारी होती हैं ना, अदालतों की इतनी छुट्टियाँ होती हैं जितनी बच्चों की होती हैं। बच्चों की भी 2.5 महीने की छुट्टियाँ होती हैं। हम भी बच्चे हैं, वकील और जज भी बच्चे हैं। वैसे मैंने कई दफ़ा इसके ऊपर लिखा है कि छुट्टियों की ज़रूरत है ही नहीं। जितने पाकिस्तान में केस पड़े हैं ना,
कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर जी हमारी कौन सुनता है। और ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से मैं बात करता हूँ, जो रिटायर्ड दोस्त रब्ता कर रहे हैं, 28 मई को इस्लामाबाद में मेन केस लग गया जो हमने दायर किए हुए थे 4 साल पहले, और इंशाल्लाह ताला हम पंजाब के जो इधर लग रहे हैं फेडरल के और पंजाब के, वो भी लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी इंशाल्लाह इन्हीं दिनों में लगने की हम कोशिश कर रहे हैं, डेट निकलवा रहे हैं। ठीक है, नए चीफ जस्टिस से रब्ता करें, अभी हड़तालों के सिलसिले भी चल रहे हैं। तो जो लोग इंतज़ार में थे ना कि जी लगेंगे तो हम शामिल होंगे, तो उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है ताकि उनको 4 साल इंतज़ार ना करना पड़े। तो वो हमारे साथ रब्ता कायम करें, अपना शनाख्ती कार्ड भेजें, अपना रिटायरमेंट का लेटर भेजें। हर पाकिस्तानी मुलाजिम जो रिटायर हो गया है या होने वाला है वो इस केस में शामिल हो सकता है। जिसको पेंशन मिलती है वो इस केस में शामिल हो सकता है। इसमें सारे लोग बार बार पूछते हैं जी कि आर्मी शामिल है कि नहीं, बैंक शामिल है कि नहीं, फलाने। भाई जिसको पेंशन मिलती है, जिसकी ग्रुप इंश्योरेंस कटती रही है और सबकी कटती रही है, सबको पेंशन मिलती है गवर्नमेंट मुलाजमीन को, वो इसके एलिजिबल है। तो उसके लिए जनाब आप हमसे रब्ता कायम करें 030047255752। मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मुनसिफ चैम्बर, मुनसिफ बिल्डिंग और 1 टर्नर रोड, लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर। ये हमारा लाहौर का पता है। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान से हमारे साथ आप कानूनी मुशावरत कर सकते हैं। हमारे पास MLC मुनसिफ लॉ कंपनी जो है उसके वकला पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। हम आपको फ्री मशवरे भी देते हैं। आप मेरे साथ 6 से 8 बजे तक रात को मशवरे भी करते हैं, लीगल सर्विस भी दे सकते हैं, आपके हम केस भी कर सकते हैं। ओवरसीज़ वालों के लिए भी हम ख़ास तौर पे केस कर रहे हैं, और मरीम नवाज़ से और शहबाज शरीफ साहब से एक मुतालबा भी करेंगे कि ओवरसीज़ वालों को जब वो आए ना पाकिस्तान के, उनके मोबाइल बंद नहीं होने चाहिए। वो पैसे दे के खुलवाते हैं, कितने शर्म की बात है। और उनसे ही हम कहते हैं कि जी ज़र मुबादला हमें भेजो, और वो भेजते हैं। तो उनको जनाब ये सहूलत दें, उनका मोबाइल बंद ना हो, और एक मोबाइल गिफ्ट वो अपनी बेटी बेटे माँ बाप के लिए लाने के लिए उनको इजाज़त हो कि एक मोबाइल बग़ैर टैक्स के वो ला सकते हैं, और अपना मोबाइल वो बग़ैर टैक्स के बग़ैर पैसों के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। कानूनी टीवी आप भी हमारा साथ दें, और भी जो वी लागर मुझे सुन रहे हैं ना, वो इसके ऊपर वीडियो लाग बनाएं कि जनाब एक मोबाइल फ्री लाएं वो, और जब पाकिस्तान में ओवरसीज़ वाले आएँ तो उनका मोबाइल बंद ना हो। ये इसके लिए मैं और यूट्यूबर को भी कह रहा हूँ कि वो इसके ऊपर वीडियो बनाएं।